Hi everyone, welcome to the channel and a soul namaste to all of you. Today we are going to talk about again a very interesting topic. Something if you've been following me, then you must be knowing कि this is one thing that I'm really fond of talking about. So आज हम crystals के बारे में बात करने वाले हैं फिर से and continuing one of our previous topics about psychic protection. तो साइकिक प्रोटेक्शन के बारे में हमने बात करी थी कि साइकिक प्रोटेक्शन एग्जैक्टली क्या होती है और हमें किस लिए चाहिए होती है साइकिक प्रोटेक्शन एंड व्हाट आर द बेसिक वेज टू टू डू योर साइकिक प्रोटेक्शन. आप किस तरीके से यू कैन मूव इन लाइफ जब आपको इंटरेक्शंस करनी होती हैं. सो साइकिक प्रोटेक्शन बेसिकली इज़ अबाउट कि आपको अपने आसपास की एक एनर्जी शील्ड ऐसे क्रिएट कर लेनी है. एनर्जी के लिए द शील्ड दैट यू हैव टू हैव so that no negativity can enter your aura and people cannot come up and basically आपकी वायरिंग को ख़राब ना कर पाएँ वो. तो इसलिए साइकिक प्रोटेक्शन ज़रूरी होती है. सो moving on, we will be talking about crystals that you can wear for psychic protection. So what happens is day in day out, this is helpful not only for the readers, the healers जो occult की line में हैं, but then also to public in general. Like you can you can work around these crystals. आप इसको रख सकते हैं. You can wear them. You can keep them by your table side, your bedside, anywhere you wish to. But then wearing them is always better. और साइकिक प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी क्यों है कि ये आपको जितने भी अभी मैं आपको क्रिस्टल्स बताने वाली हूँ वो सब आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ को ब्लॉक करते हैं. आपकी एज इन कि some of them will be draining your negative energies as well, and then the energies that you carry from other people while interacting with them. So that is how they work. And so when we talk about psychic protection, हमें सबसे पहली चीज़ किस बात पे ध्यान देना है कि when we are talking about psychic protection, it means कि हमें हमारी energies को cleanse रखना बहुत ज़रूरी है. And blocking out the energies, the bad energies that are thrown at us. And while working with people, bad energies can also mean कि thoughts and belief process, जो thought process होता है लोगों का वो इतना ज़्यादा कभी कभी disoriented होता है, and the belief system that they carry is so strong. मतलब नेगेटिव बिलीव्स को भी इतना अच्छे से लोग हार्बर कर लेते हैं अपने अंदर that they forget that it can cause impact on the other person जो आपके साथ interact कर रहा है. A very basic example is when we feel like somebody is somebody who's not entitled to our life, they coming and asking you beta how's your life going, about ki when are you getting married, or what are your plans ahead, you're not looking this color, आज आप बहुत मोटे लग रहे हो, आज आप बहुत पतले लग रहे हो. तो all these things impact you. Now this is a very basic example of the ground level example that I'm giving you. So psychic protections में क्या होता है, अब ये आके हमारी एनर्जी को हिट किया, हमें बुरा फील हुआ, then we start feeling sad about it, and eventually क्या होता है, हम उस लूप में घूमना शुरू कर देते हैं. अगर कोई हमें 2-3 बारी सेम तरीके की चीज़ बोल देता है तो वी स्टार्ट मतलब जैसे जिसको बोलते हैं ना कि आपकी शिप में अपने आप पानी आना शुरू हो गया, तो वो आपके ब्रेन में वो काइंड ऑफ होल क्रिएट हो जाता है एनर्जी लेवल पे, जहाँ पे यू कीप ऑन रिपीटिंग दोज थिंग्स विद इन योर सेल्फ एंड इट स्टार्ट्स डैमेजिंग योर ऑरा. तो द फर्स्ट and the foremost crystal that I'm going to talk about is a selenite. So selenite is, as you can see, this is a selenite, and this is a heart shaped selenite. ये होता है हमेशा मेरी वर्क टेबल पे. Now this is to cleanse your negativity, to block any negativity that's thrown at your aura. ये आपकी aura को बहुत अच्छे से protect करता है. This is also known as a master cleanser because इसको आपको clean करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. Selenite is a self cleanser.
सो ये बहुत अच्छा आस्पेक्ट है विद सेलेनाइट, दैट यू डोंट हैव टू कीप ऑन क्लीनिंग इट, एंड आपको इसको रिचार्ज करने के लिए कोई इंटेंशंस नहीं देनी पड़ती है. वंस यू गिवन द इंटेंशन, its work is done. So that is how selenite works. Selenite and the other crystals that we'll be talking about also works on deeper level. मतलब when you are doing deep psychic work, like channeling, जब आप mediumship कर रहे हो, जब आप automatic writing कर रहे हो, although there are other crystals as well that works better also, but then selenite has to be there in your protective aura, in your aura space, so that it protects the entering of any entities as well. So selenite is a strong one. Then moving on, the next is an amethyst. Now amethyst कैसे work करता है, you can see this is an amethyst again, a heart shape amethyst, or amethyst in the form of a bracelet also. bracelet के form में भी हम use कर सकते हैं. I prefer using amethyst in bracelet form or clusters and any other way that you want to. बट इसका मेन वर्क क्या होता है कि amethyst जो है वो ब्लॉक करता है बिकॉज इट रेजोनेट्स विद योर क्राउन चक्रा. तो जब भी हम कोई चैनलिंग कर रहे हैं, जब भी हम कोई साइकिक वर्क कर रहे हैं, या ऑन द बेसिक ग्राउंड लेवल जब हम किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो व्हाट amethyst डज फॉर यू इज़ कि वो नेगेटिविटी को ब्लॉक करता है बाय एनहांसिंग योर इंट्यूशन. व्हाट हैपन्स इज़ कि जब हम इतना साइकिक वर्क कर रहे हैं, तो व्हेन वी डेवलप दैट इंट्यूशन विद इन अस, एमेथिस्ट से इंट्यूशन क्योंकि डेवलप होती है, जब हमें वो हमारी वो गट फील स्ट्रॉन्गर होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वी आर बेटर एबल टू एनालाइज कि व्हाट इज़ द गुड एनर्जी फॉर अस एंड व्हाट इज़ नॉट. तो वो इवेंचुअली उस सारी नेगेटिविटी को ब्लॉक कर देता है, एंड दैट इज़ हाउ एमेथिस्ट एक्ट्स एज अ साइकिक प्रोटेक्टर. ऑल्सो यू कैन ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ चैनलिंग वर्क कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग कार्ड रीडिंग्स और ऑरेकल रीडिंग्स, या फिर एनी काइंड ऑफ चैनलिंग वर्क, बी इट मीडियमशिप एज वेल, तो आप सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं एमेथिस्ट को. बट देन एमेथिस्ट इज़ नोन एज द मास्टर हीलर. इसको हम अपनी इंटरैक्शंस में विद other people, when you are interacting on a daily basis with people, हम तब भी पहन सकते हैं. and then also it master healer क्यों बोला जाता है, because again आपकी पूरी aura को protect करता है ये, so it acts as the psychic protection crystal for you. Then moving on, we have the third that we have is a black tourmaline. Now black tourmaline, agar if you can see, it's here as a bracelet, and then I prefer using a mala, okay, when I'm doing my readings. So and again you can use it, it's very personal thing, you can use it in whatever ways you want to. आप इसका टम्बल यूज़ कर सकते हो, आप इसका क्लस्टर यूज़ कर सकते हो. अगेन हाउ ब्लैक टर्मलिन वर्क्स इज़ कि ये आपकी इट क्रिएट्स अ शील्ड अराउंड यू, आपके आसपास से एक एनर्जी शील्ड क्रिएट कर देता है, जहाँ पे वो नेगेटिविटी को पेनिट्रेट ही नहीं करने देता अंदर. कोई भी अटैक हो रहा है आपके ऊपर, कोई साइकिक अटैक हो रहा है या कुछ भी, वो उस चीज़ को एक शील्ड की तरह क्रिएट कर देगा, आपके एक आउटर लेयर क्रिएट कर देगा आपके आसपास, जहाँ पे कुछ भी अंदर पेनिट्रेट ही नहीं हो पाएगा. एंड देन इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन अब्जॉर्बर ऑफ द एनर्जीज, एंड देयरबाय आपको ग्राउंड करता है. टूरमलिन का सबसे बड़ा जो काम है वो है ग्राउंडिंग एनर्जीज के लिए. तो वेन एवर यू आर डूइंग साइकिक वर्क, तो ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी होती है उसके लिए. बाय ग्राउंडिंग आई मीन टू से कि आपको कनेक्टेड फील होना बहुत ज़रूरी होता है एनर्जीज़ के साथ. एंड बेसिक लेआउट टर्म्स में ग्राउंडिंग मीन्स दैट आपने अपने आप को एंकर कर लिया है विद द अर्थ एनर्जीज. तो वो बहुत ज़रूरी होता है बिफोर यू प्रोसीड फॉर एनी काइंड ऑफ साइकिक वर्क. तो ये काम बहुत अच्छा करता है ब्लैक टर्मलिन. सो एंड देन देर आर अदर प्लेंटी crystals as well that are available for the same thing, but it also depends on कि आपके एरिया में आपकी कंट्री में किस तरीके की
क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, आपके रीजन में किस तरीके के अवेलेबल हैं. दीज आर द वंस दैट आर वेरी इजीली अवेलेबल, यू कैन फाइंड देम एनीवेयर. मल्टीफ्लोराइट एक होता है जो कि इट्स अ वेरी कलरफुल थिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर, कलरफुल क्रिस्टल होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अगेन फॉर साइकिक प्रोटेक्शन, बट देन नॉट वेरी इजीली अवेलेबल. सो दीज थ्री आर द ones that are commonly available and can be used by anyone. So if you've liked the video, please do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much.